ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ آج کی یہ جو تقریب ہے راستے خاموش ہیں، ایک اہم ترین تصنیف عالی جناب مکرم نیاز صاحب کی ہے۔ ہم نے ابتدائی تعلیم ادارے ملیہ میں حاصل کی جو قدیم ملک پیٹ میں مشہور اسکول ہے۔ سابق پرنسپل محمد اشفاق احمد صاحب کے فرزند جناب محمد رشید احمد صاحب ہماری محفل میں تشریف فرما ہے، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے ایک اور مہمان مقرر پروفیسر مصطفیٰ علی سروری صاحب جو مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر مصطفیٰ علی سروری صاحب۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز حضرات اور حاضرین، میں 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کتاب کی اشاعت کے لیے صاحب کتاب مکرم نیاز صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں میں۔ اچھا، یہ اردو کی نہیں کھاتے، یہ اردو کی نہیں کھاتے، اور میرا یہ ماننا ہے یا میرا یہ نظریہ ہے، اردو جو پل رہی ہے وہ دیوانوں کے شانوں پر، تو مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ اس دیوانے کو اب اردو کی حقیقی صورتحال کا پتہ چلے گا۔ اور پروفیسر بیگ احساس صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ اردو کی کتاب شائع کرنے کا مطلب اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر کتاب شائع کرنا ہے۔ اردو کی کتاب کوئی خریدتا نہیں، تو میری فکر یہ ہے کہ اتنی شاندار طریقے سے یہ جو تقریب ہو رہی ہے، اردو کی کتاب کی رسم اجرا کی بہت عرصے بعد میں اس طرح کی تقریب دیکھ رہا ہوں، ورنہ اردو کی جو مجلس ہم دیکھتے تھے وہ شاید ایک نسل ہمارے درمیان کی کھو گئی ہے۔ عظیم صاحب کو یاد دلا رہا تھا ہمیں، کمرہ نمبر 57 آرٹس کالج کا روم نمبر 57 جو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے وہاں سے بولنا سیکھا ہے، لکھنا سیکھا ہے جامعہ عثمانیہ کے اردو فیسٹیول سے۔ آج نہ وہ جامعہ عثمانیہ کا اردو فیسٹیول ہے، اردو کے بہت سارے اساتذہ ہیں، حالانکہ اس وقت اردو کے اساتذہ کم ہوتے تھے۔ آج شہر حیدرآباد میں اگر آپ اردو کے اساتذہ کی فہرست ترتیب دیں تو ماشاءاللہ سے میرے حساب سے اتنی ضخامت والی ایک ڈائریکٹری آپ کو مل جائے گی، برسر کار اور ریٹائرڈ دونوں کے ملا کے۔ لیکن یہ جو اساتذہ ہیں، ہم ہمارے اساتذہ کو پڑھتے تھے اخبارات میں، رسائل میں، آج ایسی کسی محفل میں ملی تو تعجب ہوتا ہے، اچھا آپ بھی اردو کے استاد ہیں، تو کلاس روم کے باہر ان کی کیا تخلیق ہے، کیا ہے، کوئی اس سے واقف نہیں ہے۔ تو مجھے جو تشویش ہے، تشویش یہ ہے کہ خالی ہمارا کہاں پر ہے۔ یہ 25 سال کی تاخیر کی میرے حساب سے اچھا بھی کیا، خراب بھی کیا۔ اچھا اس حوالے سے کہ شاید 25 سال پہلے ہی اگر یہ تجربہ تلخ ہو جائے، اس وقت شاید خالی مل جاتے تھے آپ کو۔ 25 سال پہلے اگر آپ یہ افسانوں کا مجموعہ شائع کرتے تو خالی مل جاتے تھے۔ اب مجھے جو ڈر ہے، خالی کہاں سے لاؤں میں، خالی کہاں سے ملے گا، اور پھر اگر جب ملتا تو شاید زیادہ آپ کی ہمت افزائی بھی ہو جاتی تھی، زیادہ پڑھنے والے بھی مل جاتے تھے، اور ایک نہیں 25 کتابیں آ جاتی تھیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ کتابیں بکتی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ ہماری پھر لے دے کے بات وہیں پر آتی کہ ہماری جو صحافت ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی ایسی کتابیں ہیں جس کے متعلق تبصرے آپ کو ایمانداری سے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ روزنامہ انقلاب میں ایک تبصرہ شائع ہوا تھا ادبی گوشے میں، اس میں لکھا تھا کہ اگر یہ ویسے تبصرے اب پڑھنے کو نہیں ملتے، ڈائری میں لکھ کر رکھا ہوں میں اس کو، کہ اگر اردو کی یہ کتاب شائع نہ ہوتی تو اردو کی سب سے بڑی خدمت ہوتی تھی۔ یہ کتاب اگر اردو کی شائع نہ ہوتی تو اردو کی سب سے بڑی خدمت ہوتی تھی۔ ایسے ایماندارانہ تبصرے بھی اب پڑھنے کو نہیں ملتے۔ آپ جو کچھ بھی تبصرے پڑھنے کو ملتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہر کتاب لافانی اور شاہکار ہے۔ ایسے میں جو ایک اچھا لکھنے والا ہے، یہ بھی
उसी सफ में इसका भी शुमार होगा, ये मुझे खदशा है। बहरहाल उम्मीद तो हम अच्छी रख सकते हैं, तो उम्मीद है मुझे कि ये जो नुकसान का सौदा है, ये जो रास्ते खामोश हैं, इस किताब की आमद से इन रास्तों पर कुछ हलचल भी होगी और फिर शायद मज़ीद यहाँ से आगे बढ़ने का सामान भी होगा। एक मरतबा फिर से मुबारकबाद देते हुए और इस हिम्मत के काम पर कि जहाँ पर अपने जेब ख़ास से सारा खर्चा हो रहा है और ये कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आपको ढेर सारी हमारी नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद, बेहद शुक्रिया। मेहमान एजाज़ी मोहतरम प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब आपसे मुखातिब थे। ये जानकर आपको मसरत होगी कि रस्म इजरा से कबल ही अब सामने मजमुआ रास्ते खामोश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 300 कापियाँ इसकी फ़रोख्त हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं को दिली मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उर्दू हम समझ रहे थे कि उर्दू ख़त्म हो रही है, लेकिन उर्दू ज़िंदा है और इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगी। लंदन से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान एजाज़ी जो मुकरम नियाज़ के क़रीबी रफ़ीक भी हैं, मेरी मुराद मोहतरम आबिद सिद्दीकी साहब से है। मैं उनसे अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। ख़वातीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का नहायत करम है, फ़ज़ल है कि हम उस ज़बान की इशाअत के लिए और उसके फैलाने के लिए जो है जस्तजू में लगे हुए हैं, जिसके लिए आपको एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। आज से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़बान को अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के करम से काबतुल्लाह शरीफ में रोज़ाना मौलाना मक्की साहब का दर्स कुरान उर्दू ज़बान में होता है। आज से पहले, उनसे पहले उनके वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे जब वो दारुल से गए थे। मगर आज भी मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ पर अब उनके साहबजादे मौलाना मक्की साहब, और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी ज़बान है जिसको अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने इसके साथ क्या किया। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी आ रहा हूँ अपने यूपी के सफ़र से, और यूपी वो जगह है जहाँ पर उर्दू के ताल्लुक़ से कहा गया था कि उर्दू को सबसे ज़्यादा ऊपर ले जाया गया एक ज़माने में और उसको इज़्ज़त बख्शी गई। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैं इन इलाक़ों में गया और वहाँ के बच्चों से मैंने कहा कि भाई तुम उर्दू नहीं पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने सुना था कि एक ज़माने में यहाँ पर उर्दू ज़बान मदारिस में भी पढ़ाई जाती थी, उर्दू मीडियम के स्कूल भी थे, लेकिन एंटी जो है उर्दू मूवमेंट ने इतनी मेहनत की कि हर बच्चा वहाँ हिंदी ही जानता है। तो इसलिए आप हजरात, मुबारकबाद है आपके लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये मेहनत जो है आगे फैलती जाए, बढ़ती जाए। तो मुबारकबाद है इनके लिए कि इन्होंने जो एहसासात के ज़रिए से सारी दुनिया में इस बात को फैलाया। तो मेरी इल्तिजा ये है कि आप इन अफसानों को पूरे हसास तबीयत के साथ पढ़िए। लेकिन हमारी अपनी कोताहियों की वजह से, हमारी अपनी अय्याशियों की वजह से, हमारी अपनी लफ्ज़िशों की वजह से, हमारी अपनी जो है गलतियों की वजह से आज हमारे कितने बच्चे हैं जिनको उर्दू का भी पता नहीं। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो शायर थे, उनका क्या गया, उनका शेर आज भी मुझे याद है। वो कहते थे, उनकी जो थी गज़ल, भरपूर है तालीम की दौलत से ख़जाना, हम गाते हैं इखलास और मोहब्बत का तरह। तो इखलास और मोहब्बत के साथ आप काम कीजिए तो इंशाअल्लाह आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। इस हिंदुस्तान के हर चप्पे चप्पे में उर्दू आम हो जाए। बरतानिया में हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ पर उर्दू ज़बान होनी चाहिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वहाँ पर जो मेहनत की गई, आज नहीं, आज से कई साल पहले वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड साइंस
انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو اپنی جو مادری زبان بولتا ہے ہم اس کے لیے بھی GCSE اور A لیول کے ایگزام بنا سکتے ہیں. تو الحمدللہ وہاں پر اتنے بچے ہیں جو O لیول کا جو ایگزام ہوتا ہے تو ہم ان کو یہی انکریجمنٹ کرتے ہیں, ہمت افزائی کرتے ہیں کہ تم اپنی زبان کو سیکھ سکتے ہو. آپ سب کو بھی, اور خاص کر مکرم نام ہی ان کا ایسا ہے الحمدللہ کہ جو ہے بہت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نام عطا کیا ہے, اور سب ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان سب کے لیے اور آپ تمام حاضرین اور حاضرات کے لیے میری طرف سے دلی مبارکباد ہے. جزاک اللہ. مہمان اعزازی محترم عابد صدیقی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. آئیے میں مہمان خصوصی محترمہ قمر جمانی صاحبہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آج ایک بڑی مدت کے بعد اس محفل میں شریک ہو کر مجھے بہت طمانینت کا احساس ہوتا ہے. بہت ہی خوشی محسوس کرتی ہوں میں کہ ایک زمانے کے بعد ایک نئی کتاب وجود میں آئی ہے اور اسے قارئین کے آگے پیش کیا جا رہا ہے. میں کہانی کے بارے میں, بالخصوص تخلیق کے بارے میں بات کروں گی. آپ سب جانتے ہیں کہ میں تخلیق کار ہوں اور تخلیق کو میں بہت محاورہ مانتی ہوں. کہانی, دیکھیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہانی کہنا ایک معمولی سی بات ہے, نانی دادی بھی کہانی کہتی ہے, پھوپھی چاچی بھی کہانی کہتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں ورثے میں ملی ہے, ہمارا ورثہ ہے کہانی کہنا, کہانی سننا. قرآن شریف میں سورہ الاعراف کے 176 آیت میں یہ لکھا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ. کہانیاں کہتے رہو تاکہ کچھ تو لوگ سوچ وچار کریں. کہانی ایک محض تفنن تباہ کے لیے نہیں, قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار اس میں کہانیاں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. تو کہانی کہنا, کہانی لکھنا, کہانی سننا میری نظر میں ایک احسن عمل ہے, ایک بہت ہی مابرا عمل ہے. کہانی یوں ہی نہیں کہی جاتی, کہانی کہنے کے لیے خون جگر جلانا ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس کتاب کو پڑھ کے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ میں مکرم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے اس ادبی ورثے میں ایک اپنی جاندار کتاب کا اضافہ کیا. مکرم کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے. روش صاحب سے, ہماری ان کے والد صاحب سے تو ہماری بہت برسوں کی دوستی ہے. میرے ساتھ ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا کہ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے ساتھ 40-45 سال ساتھ رہی اور مختلف عہدوں پہ رہی. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک واحد شخص ایسی تھی جو حلف میں بھی کام کرتی تھی. میں حلف کی بھی ممبر تھی اور اس کے عہدوں پہ فائز تھی. حلف ایک ایسی جماعت تھی, حیدرآباد لٹریری فورم کا مخفف ہے, جو جدیدیوں کے لیے تھی. اس کے برعکس انجمن ترقی پسند مصنفین ترقی پسندوں کی جماعت تھی. یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہا کرتے تھے, یعنی کہ ایک ادبی لحاظ سے. لیکن میں ایک واحد شخص تھی ان دونوں انجمنوں میں شامل تھی. تو رؤف خلیج صاحب جو تھے وہ ایک جدیدیوں کے گروپ سے ان کا تعلق تھا. یہ جدید لب و لہجے کے شاعر تھے. ہمارا رؤف خلیج صاحب کے ساتھ تقریباً 30-40 سال کا ساتھ رہا. بہت اچھے ہمارے دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے. ہم لوگ ادبی لحاظ سے بھی بہت قریب تھے ایک دوسرے سے. لیکن کچھ زمانے کے بعد جب مجھے مکرم نے فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ میں رؤف خلیج صاحب کا صاحبزادہ بات کر رہا ہوں, تو مجھے بہت سی باتیں یاد آئی. میں اس لڑکے کو پہلی بار دیکھی ہوں جب یہ کتاب لے کے میرے پاس آیا, تو میرے پاس نہ اس کا کوئی نقشہ تھا ذہن میں, یہ کیسا ہوگا میں نہیں جانتی تھی. میں نے کبھی ملاقات بھی نہیں کی اور نہ کبھی ان کے بارے میں سنی تھی. تو پہلی بار میرے گھر جب کتاب لے کے مکرم نیاز آئے تو میرا دل بہت خوش ہوا. مجھے لگا کہ ایک بیٹا میرا گھر آیا. میں اس کتاب کو میں نے بہت دلچسپی سے پڑھا ہے. اس پہ 13 افسانے ہیں.
इन 13 अफसानों में मैंने 9 अफसाने मुकम्मल किए और उसको बहुत एहतियात से पढ़ा, 2-3 दिन में पढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता। मुझे इस किताब को पढ़ के ये नहीं लगा कि ये एक मुब्तदी की किताब है। अब यहाँ इन बातों से मुझे ये चूँकि पहला मजमुआ है तो मैंने सोचा कि ये मुब्तदी है, ये लड़का अभी अभी इस मैदान में दाखिल हुआ है, लेकिन अभी हमारे पेशवा मुकर्ररीन से सुन के मुझे अंदाज़ा हुआ ये तो 25 साल से लिख रहे हैं, लेकिन इनकी किताब अब आई है। ऐसा तो होना ही चाहिए, फल को पुख्ता होना चाहिए। यूँ काता के लिए दौड़ी वाली जो मामला आज हम देखते हैं, यूँ काता के लिए दौड़ी, यूँ काता के लिए दौड़ी। आजकल ये हो रहा है कि कुछ भी एक पैराग्राफ लिखो और उसे छपा दो, यहाँ छपा दो, वहाँ छपा दो, मीडिया पे डालो। हर तरह की कोशिशें ये हो रही हैं कि इसे लोगों तक पहुँचाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आप पहुँचा तो रहे हैं, लेकिन पहुँच रहा है क्या? तरसील हो रही है क्या? आपका जो इंडिया है, आपकी जो फिक्र है, उसकी तफहीम होती है क्या? ये सोचना बहुत ज़रूरी है। मुकर्रम की इस किताब को पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई कि मुकर्रम के यहाँ ज़बान, बयान और अफकार का एक सैले रवा है। ये जो इनके अफकार का, ये इनके तसव्वुरात का, इनके ख़यालात का जो बहाव है, ये कभी कभी इस कदर मुफीद भी नहीं होता। इस पे बन बांधने की ज़रूरत है। लेकिन ये अभी तो आमद के गलबे में है, इसलिए इनकी कहानियाँ आप देखिए बहुत तवील हैं। इसमें जितने भी कहानियाँ दर्ज हैं इस किताब में, वो सारी की सारी बहुत तवील हैं। इससे जाहिर होता है कि मुकर्रम के अंदर एक बहाव है, एक तनाव है। और मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि सबसे पहले मैं ये कहूँ कि मुकर्रम एक एब्स्ट्रैक्ट राइटर है। इन 13 कहानियों में, मुकर्रम की इन 13 कहानियों में कहीं कोई किरदार का नाम नहीं है। कहानी या तो वाहिद मुतकल्लिम से शुरू होती है या फिर गायब तो रावी बोलता है। ऐसी सूरत में ये अपने दरून का मुतलाशी है। यहाँ मुसन्निफ अपने दरून से मुतसादिम है, अपने दरून में पनपते जज्बों से मुतसादिम है। ये अपने जज्बों के इजहार के लिए परेशान है। ये अपने आपे में है, इसे अभी फितरत के मज़ाहिर का इल्म नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी बात है कि जब अदीब फर्स्ट पर्सन यानी वाहिद मुतकल्लिम में लिखता है तो अदीब उसमें शामिल रहता है। आप पढ़ते वक्त ये महसूस करेंगे कि ये मुकर्रम बोल रहा है। इनकी सारी कहानियों में यही कैफियत है। कहानी कहते हुए अदीब को बाजू हट के, अदीब कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि अदीब सिर्फ आईना दिखाता है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें अदीब खुद शामिल होता है। तो ऐसी कहानियाँ जिसमें अदीब शामिल होता है वो बहुत गुदाज होती हैं, बहुत माने खायज होती हैं और बहुत से फिक्र की दावत भी देती हैं। तो मुकर्रम की इन कहानियों की खासियत मैंने महसूस की कि मुकर्रम जो भी लिखते हैं वो उसको जी के लिखते हैं। वो हर जज्बे को पहले जीते हैं फिर उसे लिखते हैं। ये जो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है हमारे उर्दू अदब में, बिलखुसूस जब जदीदियत की लहर चल रही थी तो बहुत से लोगों ने इसी अंदाज में अपनी कहानियाँ लिखी और किसी कहानी में कोई किरदार नहीं होता तो मुश्किल ये हो जाती है कि कहानी को उसके उन्वान के साथ याद करके, चूँकि किरदार नहीं है, किरदार की शनाख्त नहीं है, इसलिए मुश्किल होती है कि कहानियाँ गड़बड़ हो जाती हैं एक दूसरे। बहुत सी बातें हुई, अब यहाँ इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, इतनी मुकर्रम की बड़ी सताइश भी हुई, तो अल्लाह ताला मुकर्रम को सलामत रखे और लिखते रहे। लेकिन मैं एक और बात ये कहना चाहती हूँ कि तख्लीक करना, अफसाना लिखना, कहानी लिखना इंसान की बस की बात नहीं है। मैं इसे एक वहबी अमल मानती हूँ। अब आप पूछेंगे कि वहबी कैसे होता है? देखिए, मैं आज उम्र के इस हद पे हूँ, सब जानते हैं मुझे, मैं किस उम्र की हूँ। आज भी मैं महसूस करती हूँ कि कोई मेरे अंदर डिक्टेट करवाता है, कोई मेरे अंदर बैठा डिक्टेट करवाता है। हम बंदे कलम को हरकत तक नहीं दे सकते, हमारा कलम मुतहर्रिक नहीं होता जब तक परवरदिगार का हुक्म नहीं होता। तकलीफ
कुछ भी लिखो, इसी अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। अभी हमारे मोहतरम जब बात कर रहे थे तो कुरान शरीफ की आयतों के हवाले से जब बात कर रहे थे तो कलम की हैसियत, लिखने पढ़ने की जो हैसियत है वो अल्लाह ताला के पास इतनी मावरा, इतनी बुलंद, इतनी अजीम है। तो हम लिखने पढ़ने के लिए ज़रिए पैदा करते हैं जो तख्लीक कार है। इसलिए मैं अपने आप को हमेशा यही सोचती हूँ, हर कहानी लिखने के बाद फिर मैं दुआ करती हूँ, परवरदिगार मेरे कलम को तहर्रुक दे कि मैं आइंदा कुछ लिख सकूँ। और मैं नहीं जानती कि मैं दूसरी कहानी लिखूँगी, मोमिन के नाते तो हर लम्हा हमारी ज़िंदगी का आखिरी है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी एहसास होता है कहानी तो मैंने लिखी ही नहीं, कोई था जो लिखवा रहा था। देखिए मंटू कहता है, मंटू को तो सभी जानते हैं, हर थोड़ा पढ़ा लिखा अदीब या थोड़ी अदब से वाक़फियत रखने वाला जानता है। मंटू कहता है, मंटू कहानी तो खुदा लिखता है, मंटू सिर्फ आखिरी फ़िक्रा लिखता है। मैं हम नवा हूँ, मंटू की कहानी हम नहीं लिख सकते, और जो लिखते हैं मैं उन्हें सलाम करती हूँ, जो तकलीफ करते हैं मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। बरगुज़ीदा है, तकलीफ़कार बरगुज़ीदा है, वो हिदायत के लिए, इबरत के लिए कुछ आपके लिए मवाद पैदा करता है कि काश आप इसे पढ़ें और उसे महसूस करें और अपने दिल में उन जज्बों को जज्ब करें जिस जज्बे के तहत कलम लिख अपनी तस्दीर आपके सामने पेश करता है। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, और अब चूँकि यहाँ बहुत से लोग हैं, अदीब भी हैं, मैं एक दो तीन और बात कहूँगी कि मुसन्निफ़ की ज़बान के ताल्लुक़ से, मुकर्रम की ज़बान बड़ी चुस्ता है, बहुत साफ सुथरी ज़बान लिखते हैं। उसके अलावा भी इनकी ज़बान में इस्तारे हैं, जैसे इनकी कहानी है ज़मीन, गालिबन ज़मीन है। मैंने अभी कहा ना कि मैंने 9 कहानियाँ पढ़ी, लेकिन चूँकि किरदार नहीं है, उसमें किरदार का कोई नाम नहीं है, कहानियाँ आपस में गड़बड़ होने लगी हैं, क्योंकि अफकार का सैले रंगा भी वैसा ही है मुकर्रम का। तो मैं ये कह रही थी कि इन्हें ज़बान इन्हें वर्षे में मिली है। ये सभी लोग अभी यहाँ कह रहे थे कि सभी एक ऐसे ख़ानदान को बिलोंग करते हैं कि जहाँ ज़बान इनके घर में पली बड़ी है, वालिद, चाचा, सभी कुछ घर वाले सारे के सारे उर्दू ज़बान में ही इनका ओढ़ना बिछोना है, तो ज़ाहिर ने वर्षे में मिली है। तो हाँ, मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ तो हूँ ही कि इनके वालिद साहब एक बहुत अच्छे शायर थे, और वो तभी है कि घर में अगर वो माहौल हो तो हम हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन मैं इस बात को मुकम्मल तौर पे कबूल भी नहीं करती कि किसी का बाप डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर बन जाए, कोई अदीब है तो उसका बच्चा अदीब बन जाए, क्योंकि वही सैराब होता है जो दरिया तक पहुंचता है, किसी के पास चल के खुद कभी दरिया नहीं आता। इसलिए जस्तुजू की ज़रूरत है, जद्दोजहद की ज़रूरत है। अगर मुकर्रम अदीब है इस ख़ानदान में तो मौज़म क्यों है? मौज़म भी क्या अदीब है? अगर है तो बहुत मुबारकबाद है। मैं हमारे मुकर्रम के भाई मौज़म को तो देखी नहीं हूँ, अभी सुनी हूँ कि इनके एक भाई भी हैं जो जिनका नाम मौज़म है। तो अगर है तो सारे के सारे बच्चे अदीब हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि इनमें इतनी जस्तुजू है, वरना दरिया चलकर किसी के पास नहीं आता, हमें जाना पड़ता है पीने के लिए। बाद मुकर्रम के यहाँ ख़यालात की जो बहाव है वो निहायत तुंद है, और वो इस कोशिश में है कि उनके अंदर जो लावा है वो सब का सब कागज़ पे बिखेर दें। इस तगो-दो में यह होता है कि खारी की सांस फूलती है, एक उम्र का तकाज़ा है। देखिए जो अब उम्र मैं 70 साल की हूँ, अब इस लड़के को मैं बोलूँ कि तुम इजाज़ और इख्तिसार की तरफ जाओ और अपने ख्यालात में बंद बांधो, तो ये एक अनहोनी सी बात है, ये उम्र का तकाज़ा है, ये तजुर्बे से आएगा कि इजाज़ क्या है, इख्तिसार क्या है, और अपने ख्यालात को कहाँ रोकना है, कहाँ खुले छोड़ना है, क्योंकि अफसाना जो है सबसे संगलाख ज़मीन है।
अफसाने में अफसाना सब लोग बताते हैं कि इसके अज्जाए तरकीब ये हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि क्या नहीं होना चाहिए। अफसाने में गुरेज किसका होना चाहिए? तकरीर, तबलीग और जहन की ढीली उड़ान। इन तीन चीज़ों से गुरेज बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इनसे गुरेज नहीं करते, अफसाना एक जामे अंदाज में, एक फ्रेम में, एक टाइम फ्रेम में फिक्स नहीं होता, बहता है। खाली परेशान होता है, भागता है, खाली इधर भागता है, उधर भागता है, सांस फूलती, अरे कहाँ था मैं, कहाँ आ गया। तो खारी को उंगली पकड़ के चलना सिखाने के लिए एक उम्र, एक तजुर्बा चाहिए। अगर ये बच्चा इस उम्र में इतना अच्छा लिख सकता है तो मैं इससे बहुत से तवक्कुआत रखती हूँ कि इंशाल्लाह ये बहुत बहुत आगे जाएगा, क्योंकि इनके यहाँ ज़बान है, सलीका है, ये इसकी फिक्र बहुत अच्छी है, एक शाइस्ता ज़ौक़ रखता है ये लड़का। ये आगे चल के बहुत आगे जाएगा और मैं चाहती हूँ कि मुकर्रम अपना ये सफ़र हमेशा जारी रखे और लिखते रहें हमेशा। अदब में सबसे अहम चीज़ क्या है? कंसिस्टेंसी है। एक 4 कदम चल के आदमी हाँफने लगता है, रास्ता बदल लेता है। ये अदब के लिए नामुनासिब रास्ता है। अदब के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें मुसलसल उस पर कुछ ना कुछ लिखते रहें और उस पर अमल करते रहें। तो तख्लीक जो है एक इस्तिरारी अमल है। तख्लीक किसी भी तरह की तख्लीक हो, एक इस्तिरारी अमल है। माँ जब बच्चों को पैदा करती है, एक इस्तिरारी फेल है। तख्लीक किसी भी माने में लीजिए आप, एक इस्तिरारी फेल है, बेचैनी का अमल है। सुकून में तख्लीक नहीं होती। इंसान के अंदर बेचैनी होनी चाहिए, महसूस करने की, जज्ब करने की, उसको लोगों तक पहुंचाने की, अपने दर्द को मुंतकिल करने की। ये सारी कैफियत जो है इस्तिरारी अमल है। इसलिए इसमें कभी कभी यूँ हो जाता है कि जो मुब्तदी होते हैं वो आमद के गलबे से बहुत बेचैन हो जाते हैं और बहुत अपने ख्यालात को बहुत तेज़ी से अपने कलम खरतास व कलम के हवाले करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त अगर ले ली हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि जब मुकर्रम ने मुझे कहा। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ जो प्रोफेसर शाफी खिदवाई का जो बैक कवर पे इन्होंने लिखा है, शाफी साहब उर्दू बहुत अच्छे लिखते हैं, मुझे इसमें अंग्रेज़ी में लिखा है इन्होंने। यहाँ इन्होंने लिखा है, मैं एक मिनट और लूँगी। Mukarram tells the complex and ever-changing story of human relationships through the prism of an individual who poignantly processes the silence of the mind with the aesthetics of narration. तो मैं यहाँ ये छोटी सी बात ये बताना चाहती हूँ कि शाफी खिदवाई साहब ने जो बात कही है उसे मैं आपको उर्दू में बताती हूँ। मुकर्रम अपने हुस्न बयान के विजदान से फर्द वाहिद का वो करनाक दास्तान सुनाता है। मुकर्रम अपने हुस्न बयान के विजदान से फर्द वाहिद की वो करनाक दास्तान सुनाता है जिसमें वो इंसानी रिश्तों की नाहमवारी के सबब पैदा होने वाले हैजान से मुसलसल नबरदास्मा रहता है। ये जो इन्होंने लिखा है ये पूरी किताब की तफसीर है। शाफी खिदवाई साहब ने जो लिखा है ये पूरी किताब की तफसीर है। ये पूरा इन्होंने मुकर्रम को आईने के मुकाबिल खड़ा किया है। ये मुकर्रम की इस वक्त की कैफियत है, एक बेचैन कैफियत है। लिखने की जो इनकी ख्वाहिश है, अल्लाह इसे और खूब तरक्की दे और ये खूब लिखें, खूब पढ़ें और जितना लिखें उतना पढ़ें, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा लिखेंगे और शऊर उनका बेदार होगा। मुकर्रम ने जब मुझे फ़ोन किया कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी महफिल में शरीक हों, तो मैंने कहा कि मैं एकदम राज़ी हो गई और मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है और मैं देखना चाहूँगी कि मेरा वारिस कैसा है, कौन है। मैं मुकर्रम को जानती नहीं थी, ना मैंने कभी पढ़ा है। मैं
किसी रिसाले में, मैं सच कहती हूँ कि मेरी कम आएगी भी हो सकती है, मैंने किसी रिसाले में मुकर्रम को नहीं पढ़ा है। इसलिए मैं जब इन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके मेरी दावत कबूल कीजिए और मेरे जलसे में मेरे किताब की इजरा में आइए, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैं अपने वारिस को देखना चाहती हूँ। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे कई और लिखने वालों को पैदा करे, नौजवान नस्ल में पैदा हो, और मैं कभी नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं कभी महरूमी का शिकार हो भी नहीं हूँ कि आइंदा उर्दू की किताबों को पढ़ने वाला कोई होगा भी कि नहीं होगा। देखिए 21वीं सदी को नॉवेल की सदी माना जा रहा है। जितने लोग जितने अफसाने निगार थे वो सब कुछ नॉवेल लिख रहे हैं। नॉवेल लिखना कोई मामूली बात नहीं है, और जितनी नॉवेल्स लिखी गई हैं उतनी नॉवेल पढ़ी गई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कारी नहीं मिला, कारी तो मिल जाएंगे। ज़बान हमारी, मोहतरम ने जब बताया कि हमारी ज़बान दरअसल उर्दू ज़बान में हमारा मजहबी असासा सबसे ज़्यादा है, इसलिए अल्लाह ताला उसमें बरकत भी रखा है। तो मैं मायूस नहीं हूँ, इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़बान हमेशा ज़िंदा रहेगी और हम यूँ ही लिखते रहेंगे और हमारी नौजवान नस्ल आगे आएगी। मैं मुकर्रम की हक में दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें और उनका ये सफ़र बहुत ताबनाक रखे। इन्होंने इस अदब की संगलाख ज़मीन में पहली कंदील रोशन की है, ऐसे कई और भी चिराग रोशन करने वाले इस दुनिया में पैदा हो जाए और ये सफ़र जारी रहे, मुकर्रम के उम्र दराज हो और वो खूब लिखे पढ़े और खूब नाम कमाए, ये मेरी दुआ है। और तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। आप सब अच्छे रहें, खुश रहें। आजकल जो हमारे हालात हैं, ये जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, अदीब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम क्या लिखें क्या ना लिखें। लिखें तो क्या हम बख्शे जाएंगे, ना लिखें तो क्या हम अपने ज़मीर के लिए आगे जवाबदार नहीं होंगे। ये कश्मकश हयात हमारे लिए बड़ी संगीन है। लेकिन ये जो दौर है, ये क्या बताएं, बहुत संगीन दौर है और अदीब के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। हो सकता है कि हम अपने ज़बान को चाहते हैं कि काबू में रखें, कभी हम सोचते हैं कि नहीं हमें लिखना चाहिए, हमको इंसाफ करना चाहिए, वरना हम अपने ज़मीर के सामने अदालत में खड़े हो जाएं। वैसे ये ज़मीन बहुत नम है और इंशाअल्लाह ये खूब पनपेगी। जज़ाकल्लाह। मेहमान खुसूसी मोहतरमा कमर जमानी साहिबा मुकर्रम नियाज़ के बारे में अपने ज़रीन ख़यालात का इजहार फरमा रही थी। मैं एक शेर मुकर्रम नियाज़ की नज़र करता हूँ। मुसलसल चलता रहता है कभी घायल नहीं होता, मुसलसल चलता रहता है कभी घायल नहीं होता, मुसाफिर ज़िंदगी का तालिब मंजिल नहीं होता, मुसाफिर ज़िंदगी का तालिब मंजिल नहीं होता। आइए मैं मुकर्रम नियाज़ साहिब किताब से इल्तिमास करता हूँ। रास्ते खामोश हैं लेकिन आवाज़ नहीं। आवाज़ तो जाग रही है, गूंज रही है। आवाज़ जो ज़िंदगी की अलामत है और इंसान जो इस अलामत का इजहार है। यहाँ आप सबकी मौजूदगी जाहिर करती है कि अभी ज़िंदगी खामोश नहीं हुई। ये सांसें ले रही है, जी रही है, दौड़ रही है, भाग रही है। इस दौड़ती भागती मसरूफ ज़िंदगी से चंद लम्हे चुरा कर आप सब ने जो इस तकरीब का नाम किया है, इसके लिए मैं आप तमाम का तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ। सदर मोहतरम रहमत यूसुफ ज़ई, मेहमान खुसूसी मोहतरम कमर जमानी और मेहमान एजाज़ी जनाब महमूद शाहिद, जनाब आबिद सिद्दीकी, डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़, प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी, जनाब अजीम कुरैशी, जनाब अहमद अरशद हुसैन, जनाब फरहान अजीज़, जनाब मोहसिन खान, डॉक्टर अबुल मज़हर खालिद सिद्दीकी और बरालम सुहेल अजीम के साथ साथ मैं आप तमाम हाज़रीन, दोस्त अहबाब, अज़ीज़ और तारिक का
دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا, عزت دی اور حوصلہ بڑھایا. بہت بہت شکریہ. علامہ اعجاز فاروق, پروفیسر فضل اللہ مکرم, پروفیسر مظفر شاہ میری, ڈاکٹر مصطفیٰ کمال, ڈاکٹر مجید بیدار, ڈاکٹر اسلم فاروقی اور جناب اعجاز عبید کے علاوہ چند مزید دوست کسی نہ کسی باعث شرکت سے قاصر رہے ہیں. ان سب کی کمی کو محسوس کرنے کے باوجود میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میری بیٹی اور اسی کی طرح آج کی نسل اکثر ایک سوال اٹھاتی ہے, صرف اردو زبان ہی کیوں ضروری ہے؟ اس کا کچھ جواب اگر میری بیٹی نے دیا ہے تو کچھ جواب میرے پاس بھی ہیں. لیکن ٹھہریے, میں کچھ سال پیچھے پلٹ جاتا ہوں. زمانہ طالب علمی کے دوران میں نے اپنے والد مرحوم رؤف خلیش سے کبھی پوچھا تھا, میری اپنی نظر میں اردو ادب کو آج کل ایک مشکل شکل میں پیش کیا جا رہا ہے, اس لیے ہماری نئی نسل کو اردو زبان سے دلچسپی نہیں. اگر اردو ادب کو کچھ آسان فہم بنا دیا جائے اور جدید علامتی یا اشاراتی زبان میں پیش کرنے سے گریز کیا جائے تو شاید یہ زبان یا یہ ادب آج کی نئی نسل میں کچھ مقبول ہو سکے. اور میں یہی بات آج دہرانا چاہتا ہوں کہ بات صرف زبان کی نہیں ہے, بات تو لٹریچر کی بھی ہے, یعنی شعر و ادب. اور دنیا کی ہر بڑی زبان میں ادب کا خزانہ ہوتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے والد صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ تم نے دراصل زبان و ادب کو ایک ہی صف میں شامل کر دیا ہے, ایک ہی صف میں لاکھا کیا ہے. تو وہی بات میں دہراتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ زبان کی بات نہیں ہے بلکہ لٹریچر بھی ہے, شعر و ادب ہے. اور دنیا کی ہر بڑی زبان میں ادب کا خزانہ ہوتا ہے. ادب جو انسان کو بہتر زندگی کی راہ بتاتا ہے, سجھاتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے. جب زبان ہی نہیں رہے گی تو ادب کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور اگر ادب نہیں ہوگا تو پھر ہم پتھر کے یا جنگل کے دور میں لوٹ جائیں گے. لہذا یہ بات خود ہمارے سمجھنے کی ہے کہ زبان اور ادب کا شوری دامن کا ساتھ ہے. ہماری نسل کو اردو سے دلچسپی نہیں, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اس کا کسی بھی زبان کے ادب کی مشکل پسندی سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ ہم کو ادیب و شاعروں سے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی آسان زبان میں ادب تخلیق کرو. ادب کے ہزارہ پہلو ہوتے ہیں. کئی ایسے ادیب و شاعر بھی ہوتے ہیں جو آسان زبان میں ادب تخلیق کرتے ہیں, کئی ایسے ہوتے ہیں جو مشکل پسند ہوتے ہیں. اس عمل سے زبان کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا, بلکہ زبان ہر اعتبار سے مالا مال ہوتی جاتی ہے. عوامی زبان کی شاعری کے حوالے سے اردو میں اگر نذیر اکبر آبادی کا نام ہے تو اردو میں ہی غالب جیسا شاعر پیدا ہوا جو مشکل پسندی میں ثانی نہیں رکھتا تھا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عام آدمی ادب میں دلچسپی لے, یہ صفت تو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. ہاں, ادب سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک شرط ہے, وہ ہے بات کا سمجھ میں آ جانا, اور اس کے لیے ایک معیار بنانا پڑتا ہے, اور معیار بنانے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. ایک ادب ذوق قاری کچھ عرصے کے مطالعے کے بعد اس معیار تک یا اس کے آس پاس پہنچ جاتا ہے, بشرط یہ کہ آپ پڑھنے کے لیے وقت نکالیں. اور پھر آج پڑھنے کے لیے کتاب کے علاوہ بھی دیگر کئی ذرائع موجود ہیں. کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, موبائل ہے, ٹیب ہے, انٹرنیٹ ہے. بس تھوڑا سا وقت نکالنا ہمارا آپ کا کام ہے. مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ کئی سال پہلے کے لکھے گئے اپنے افسانے پڑھوانا چاہتے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ کیا دنیا بدل جائے گی یا آدمی سدھر جائے گا؟ نہیں,
मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है कि अदब के पढ़ने से आदमी की ज़िंदगी तब्दील हो जाती है या सुधर जाती है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अदब के ज़रिए आदमी की सोच का दायरा थोड़ा वसी होता जाएगा। वो इंसानी नफ्सियात को समझकर अपने बर्ताव, अपने ज़र्फ, अपने रवैयों, अपनी बोलचाल, अपनी फिक्र और नज़र में कुछ न कुछ तब्दीली ज़रूर ले आता है। ज़रा सोचिए कि इससे अच्छी बात और क्या होगी, क्योंकि आपको सुनकर, आपको देखकर, आपको परखकर, समझकर आपके मुंह पर कहे कि माशाअल्लाह आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि रास्ते हर चंद खामोश हैं, मगर आदमी खामोश नहीं, वो बोल रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। यही जिंदगी की जिंदादिली की अलामत है। और जिंदगी यूं ही रवा दवा हो तो आदमी के बेहतर जिंदगी गुजारने की उमंग भी हर पल जिंदा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब महफिल जनाब मुकर्रम नियाज इजहार तशक्कुर के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आज मोहतरम रऊफ खलील साहब और प्रोफेसर क़यास मतीन साहब की याद शिद्दत से महसूस की जा रही है। जैसा कि मुकर्रम नियाज ने अपनी किताब में लिखा, अपने अव्वलीन असातिज़ा की नज़र के जिनकी रहनुमाई, हौसला अफजाई, शफ़क़तें और यादें सरमाए हयात है। आइए अब मैं सदर मोहतरम प्रोफेसर रहमत यूसुफ ज़ई साहब, साबिक़ सदर शोबे उर्दू हैदराबाद यूनिवर्सिटी से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने सदारती खिताब से सरफराज फरमाएं। प्रोफेसर यूसुफ रहमत यूसुफ ज़ई साहब। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर बहस की जा सकती है, बात की जा सकती है, सोचा जा सकता है और आगे बढ़ने की कोशिश भी की जा सकती है। इनकी जो अफसाना निगारी है उस पर मैंने गौर किया और जो बात समझ में आई मैंने उसको लिख भी डाला। अफसाना निगारी का फ़न यूं ही जन्म नहीं लेता। एक ख्याल धुएं की तरह जहन को मुतासिर करता है। एक ख्याल धुएं की तरह जहन को मुतासिर करता है और कहानी बनकर लफ्ज़ों का रूप इख्तियार करता है। इस मजमूए को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुकर्रम नियाज़ ने अपनी अफसाना निगारी के सफ़र में जो देखा, जो सुना और जो पढ़ा, उससे एहसास को जन्म लिया और यूं उनकी तख्लीक़ात वजूद में आई। मुझे नहीं पता कि मुकर्रम नियाज़ ने कब अफसाना निगारी का आगाज़ किया होगा और अब तक कितने अफसाने लिखे होंगे। इस किताब में तो सिर्फ 13 अफसाने हैं और इनका जो सवानेही खाका उस किताब में है उसके मुताबिक उनका पहला अफसाना आजमाइश 1987 में रामपुर के रिसाले बुतून में शाये हुआ था। ये 68 में पैदा हुए, तो आप बताएं कि क्या उम्र रहेगी उनकी? 19 बरस। और 19 बरस की उम्र में अदब के जर्सू में शायद उनके अंदर बचपन ही से मौजूद थे और उसकी वजह उनके वालिद, उनके फूफा, उनके चाचा जब ये लोग बैठते होंगे, बात करते होंगे, कुछ लोग उनके पास आते होंगे, बहुत सारे दोस्त आते थे, हसन फरूख हैं और ये बहुत सारे लोग थे जो आते थे, घर पर आ जाते थे, बैठ के बातें करते थे, तो ये शायद सुनते रहे हों और उनके जहन में ये जर्सों में पैदा होते रहे अदब के और यूँ उन्होंने अफसाने की तरफ रुख किया। उर्दू में जदीदियत का कमल 7वीं दहाई के इब्तदाई सालों से ही
اپنے رنگ بکھیر رہا تھا، اور حیدرآباد میں رؤف خلیش، غیاث متین اور دوسرے بہت سارے احباب نے اپنی شاعری میں اس کو اپنا لیا تھا. اور اسی دور میں شاید 67 یا 68 میں احمد امیش کے افسانوں کا مجموعہ مکھی شائع ہوا تھا. پھر اور اس سے کچھ عرصہ پہلے، میرا خیال ہے 2-3 سال یا 4 سال پہلے، غیاث متین اور رؤف خلیش نے حیدرآباد لٹریری فورم کی بنیاد رکھی تھی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید اپنی راہ بھول رہا ہوں، اپنی راہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں، راستے خاموش ہیں، اور میں منزل کی طرف جانے کے بجائے شاید میں بھی راہ بھٹک رہا ہوں. بہرحال مکرم نیاز نے مجھے اپنی کتاب دی، اور جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو اس میں کھو سا گیا. پھر میں نے سوچا کہ مکرم نیاز کے افسانے میں نے اب تک کیوں نہیں پڑھے. شاید وہ میری رسائی سے دور تھے. راستے خاموش ہیں مکرم نیاز کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے، جو انہی کے ایک افسانے کا عنوان بھی ہے. راستے خاموش ہی رہتے ہیں، ان پر پرانے اور نئے لوگ گزرتے رہتے ہیں، اور راستے ہر ایک کو اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے مدد کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ خاموش ہے. لیکن منزل، کیا ہر شخص منزل کی تلاش میں سرگردہ نہیں ہے؟ احساسات کی مگر کوئی منزل نہیں ہوتی. ویسے ایک منزل تو ہے احساس کی بھی، اگر سوچا جائے، لیکن ہر شخص اپنی منزل کی تلاش میں تو سرگردہ نہیں ہوتا. کیا ہر شخص ہوتا ہے، ہر شخص سرگردہ ہوتا ہے. اور مثبت اور منفی احساسات بھی اکثر انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور اپنی قوت بڑھاتے ہیں. احساس اپنی قوت بڑھاتے رہتے ہیں. تو جو مثبت احساسات ہیں وہ ہر اس فنکار کے، ہر اس تخلیق کار کے ذہن کو متحرک رکھتے ہیں جو سوچتا اور محسوس کرتا ہے، اور اپنی ایک عجب کی تڑپ کو اپنی تخلیق میں منتقل کر دیتا ہے. مکرم نیاز ایسے ہی حساس فنکار کا نام ہے، جنہوں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اسے محسوس کیا اور الفاظ کے سہارے اپنی تحریروں میں شامل کر دیا. اور اب یہ قاری پر منحصر ہے کہ وہ ان احساسات کو سمجھتا ہے یا نظر انداز کر دیتا ہے. وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ یہ کچھ مذبذب سی بات ہے. ان احساسات کو سمجھنا میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. جو آج کل جو لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں، شاید وہ بھی تو احساسات کے سہارے ہی آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے احساسات ان کو آگے بڑھاتے ہیں نئی تخلیق کی طرف، نئے ایجاد کی طرف. لیکن آگے بڑھتے ہوئے راستوں پر جو مسائل پڑے ہوتے ہیں، ان سے بچ کر نکلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. مکرم نیاز کی اس کتاب میں صرف 13 افسانے ہیں، اور ہر افسانہ یقیناً اس قابل ہے کہ پورے ایک سیشن پر اس پر گفتگو ہو. اس میں اتنے ٹکڑے ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ ایک سیشن اس پر بات کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس میں تہذیبی، اخلاقی، سیاسی، نفسیاتی ہر طرح کے موضوعات سمیٹ لیے گئے، اور بڑے خوبصورت انداز میں. یہ نہیں ہے کہ آپ بور ہو جائیں. اور اگر ان پر گفتگو ہو اس سطح پر
نئی تہذیبی اخلاقی سیاسی نفسیاتی سطح پر اگر نئی افسانوں کو بحث کی جائے تو شاید یہ مکرم نیاز کی تخلیقی صلاحیتوں کا احاطہ ہو سکے. یہ افسانے ایسے ہیں کہ اس کے ہر ٹکڑے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا یہاں کہ میں ہر ٹکڑے کو، میں نے کچھ ٹکڑے جمع کیے الگ الگ افسانوں سے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پر بھی گفتگو ممکن نہیں ہے کیونکہ ابھی 10 تو بج ہی رہے ہوں. میں نے 2 دن ان کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کتاب کا مطالعہ کیا اور کتاب ختم کی، اور 2 دن اس لیے کہ مصنف نے جو احساسات اس میں رکھے ہیں وہ دل کو چھو لیتے ہیں. میں ایک کتاب کو صرف 2 گھنٹے کے اندر ختم کر لیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ. یہ 200 صفحے کی کتاب میرے لیے کوئی زیادہ وقت اس میں خرچ کرنا نہیں تھا، لیکن یہ افسانے ایسے تھے کہ میں پڑھنے کے بعد اس پر سوچتا رہا بہت کہ یہ کیسے مرحلے ہیں، کیسی باتیں ہیں، کیسے احساسات ہیں، کیسے جذبات ہیں جو اس میں پیش کیے گئے. مجھے حیرت ہوئی کہ ان میں ایسے جذبات موجود تھے اور انہوں نے کاغذ پر منتقل کر دیے. یہاں بھی ان افسانوں کچھ بات ہوئی ہے، کچھ باتیں ایسی بھی تھیں کہ شاید مجھے اس پر کچھ کہنا چاہیے تھا، لیکن میں ان چیزوں کو ابھی نہیں کہوں گا. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مکرم نیاز نے جذبات اور احساسات کا ایک وسیع سمندر سمیٹ کر اپنے افسانوں میں رکھ دیا ہے. اچھا، اور ایک دلچسپ بات جو میں نے محسوس کی، سبھی نے جن کو کتابیں ملی ہیں انہوں نے اس کا پیش لفظ پڑھا ہوگا. یہ پیش لفظ بھی ایک دلچسپ اور احساسات سے بھرپور بیانیہ ہے. اور ایک بات بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی بھر میں، میری عمر 80 سال ہو گئی اور نہ جانے کتنی کتابیں میں نے پڑھ ڈالی ہوں گی، لیکن میں نے اس طرح کا پیش لفظ کبھی نہیں دیکھا. اس کا عنوان ہے جو کہا نہیں وہ سنا کرو. اور لطف کی بات یہ ہے کہ مکرم نیاز نے بظاہر خود کچھ نہیں کہا اور بہت کچھ سنا دیا ہے، اور اس طرح خاری کے ساتھ ساتھ دیگر افسانہ نگاروں کے ذہن کو روشن کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اپنے سائے یا یوں کہیے کہ اپنے ہمزاد کے ذریعے کہے گئے الفاظ کہے گئے الفاظ کے ذریعے مکرم نیاز نے اپنی سوچ اور اپنے احساسات کو اس پیش لفظ میں شامل کر دیا. انہوں نے اس میں کچھ ناقدین کے خیالات بھی پیش کیے، اور وہ ناقدین وہ ہیں جو افسانہ نگاری کے فن کو زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور قاری کے لیے ذہن اور خیال کی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں. مگر کیا ہر کوئی فنکار ان پہلوؤں پر غور کرتا ہے؟ ان پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہی شاید کچھ آگے بڑھنے کی توقع کی جا سکتی ہے. شاید کم ہی افسانہ نگار ہوں گے جنہوں نے ان پہلوؤں کو اپنایا. کئی اہم ناقدین ہیں، اس کے پیش لفظ میں آپ کو یہ ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی، لیکن مکرم نیاز نے واقعی ان سے کچھ حاصل کیا اور اسی وجہ سے انہوں نے افسانے لکھے. وہی خیال ان کے ذہن میں آئے اور جو جن افسانہ نگاروں نے ان باتوں کو قبول کیا انہی میں سے افسانہ نگار کو مکرم نیاز کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اور میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مکرم نیاز نے اس مجموعے کو شائع کر کے
वो बेकसास का कहा हुआ जुमला किसी ने दोहराया था अभी कुछ देर पहले कि बच्चों को अगर बच्चों का पेट काट के किताब शाये करना कोई अच्छी बात नहीं है शायद, मगर उन्होंने इस मजमूए को शाये किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने बच्चों का पेट नहीं काटा, नहीं काटेंगे। ये तो अदब की सलाहियत है कि वो न सिर्फ तख्लीक होता है बल्कि वो अदब खुद ब खुद अपने अहबाब में, दोस्तों में या और दीगर पढ़ने वालों में मुंतकिल होता है, और ख्वाहिश भी खालिद की यही होती है कि वो दूसरों तक पहुँचे, और वही मुकरम नियाज़ ने किया। उन्होंने इस मजमूए को शाये किया, बहुत अच्छा किया, और उन्होंने अपनी तहरीर की क़ुव्वत को पेश करने के साथ साथ आइंदा लिखने वाले अफसाना निगारों को और मुस्तक़बिल के नाक़िदीन को एक रास्ता दिखाया है गौर करने के लिए, सोचने के लिए, और एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा खामोश रास्ता जो नौजवान अदीबों के लिए रोशनी मुहैया कर सकता है। मैं मुबारकबाद बस करता हूँ मुकरम नियाज़ के लिए। वो ज़्यादा उम्र के वो भी नहीं हैं, मेरे बेटे की उम्र भी 54 साल से ज़्यादा ही है, तो ये भी शायद अभी 54 साल के हैं, कोई बात नहीं, उम्र अहम नहीं होती। अगर इसने 19 साल की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था और छपा भी, बालों में जो उसका जिक्र हुआ, मैं नहीं जानता कि वो कब छपा है, लेकिन इनकी किताब में जो किताब में लिखा है वो 1987 में बुतूल में इनका एक अफसाना छपा, 87 में, यानी जब उनकी उम्र 19 साल थी, लेकिन बालों में कब छपा है ये मैं नहीं जानता, हो सकता है कि 94, अच्छा, लेकिन उससे पहले वो छपते रहे हैं, इसका मतलब ये बचपन ही से लिखने की तरफ माइल हुए, और उसकी वजह वाकई वही है, उनके वालिद और इनके फूफा रऊफ खलीज और रियासमती। तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके तख्लीक़ात का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अदब को ज़रूरत है इस तरह से सोच पैदा करने की, और अगर ये सोच पैदा नहीं हुई तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, ना ज़बान, ना अदब, ना अखलाकी बातें, ना कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, जब तक कि हम उन एहसासात को दूसरों में मुंतकिल ना करें जो मुकरम नियाज़ ने किया है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो और लिखेंगे, उनके और मजमूए छपेंगे। सदर अदबी इजलास मोहतरम प्रोफेसर रहमत यूसुफ ज़ई साहब, साबिक़ सदर शोबे उर्दू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अपने सदारती खिताब से सरफराज फरमा रहे थे। इसके साथ इदारे हफ्ते रोज़ा गवाह के ज़ेर एहतमाम मुकरम नियाज़ के एज़ाज़ में जो आज की महफिल सजाई गई थी इख्तिताम को पहुँच चुकी है। आइए मैं जनाब अहमद अरशद हुसैन साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो तमाम शुरा का शुक्रिया अदा फरमाएं। शुक्रिया अदा करने से पहले मेरा जो ताल्लुक़ है मुकरम नियाज़ साहब से वो मैं 2 जुमलों में बता दूँगा। 1998 की बात है, मुकरम नियाज़ साहब को पहली मर्तबा उनके पहला पोर्टल शायद नहीं, तामीर से पहले भी पोर्टल उन्होंने बनाई थी, 1998 की बात है। एक नज़र इधर भी, उनके पोर्टल का नाम था एक नज़र इधर भी, जो एक फ्री होस्टिंग कंपनी के अंडर में थी वो, जबकि हैदराबाद में इंटरनेट नया था और मोबाइल तो था ही नहीं, पहला पोर्टल था वो।
फिर उसके बाद में 2006 में जब फेसबुक आया, उसके बाद में वो कान पकड़ते हुए, कान मरोड़ते हुए अपने फॉलोअर्स को मिले। बहरहाल मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से मुकर्रम नियाज़ साहब से वाबस्ता भी हूँ, साथ में हम काम भी करते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और तमाम हाज़रीन और मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.